I said get away from me. Stay here. No, please don't leave us alone. امی ابو کہاں ہو آپ لوگ؟ بچاؤ، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ یہ کہانی ہے دو معصوم بچوں کی جنہیں سوتیلی ماں جنگل میں چھوڑ آئی۔ نہ گھر، نہ راستہ، نہ کوئی سہارا۔ پھر دیکھیے یہ بچے جنگل میں کیسے زندہ رہے اور کیسے دو باز کے بچوں نے ان کی زندگی ہی بدل ڈالی۔ آخر میں جو سوتیلی ماں کا انجام ہوا وہ سن کر آپ بھی رو پڑیں گے۔ کہانی بہت ہی دلچسپ ہے، آخر تک ضرور سنیں۔ ایک گاؤں میں سلیم نام کا ایک محنتی آدمی رہتا تھا جو دن رات مزدوری کر کے اپنے گھر کا خرچ چلاتا تھا۔ سلیم غریب ضرور تھا مگر محنتی اور ایماندار انسان تھا۔ وہ روزانہ گاؤں سے باہر جا کر مزدوری کرتا تاکہ اپنے بچوں کا پیٹ پال سکے۔ سلیم کی بیوی کا نام فاطمہ تھا۔ فاطمہ نرم دل، صابر اور گھر کو جوڑ کر رکھنے والی عورت تھی۔ وہ اپنے بچوں فیضان اور ماریا سے بے حد محبت کرتی تھی۔ فیضان 5 سال کا تھا اور ماریا 4 سال کی تھی۔ دونوں ابھی بہت چھوٹے تھے۔ فاطمہ ہی ان کے لیے سب کچھ تھی۔ فاطمہ روزانہ گھر کے کاموں کے ساتھ ساتھ قریبی کھیتوں میں جا کر سبزیاں چنتی تھی۔ وہ یہ سب اس لیے کرتی تھی تاکہ گھر کا خرچ تھوڑا سا کم ہو جائے۔ اکثر وہ تھکی ہوئی واپس آتی مگر بچوں کے سامنے مسکرا دیتی۔ کچھ دنوں بعد فاطمہ کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ پہل وہ کمزور سی محسوس کرتی تھی، پھر اس کے جسم میں درد رہنے لگا۔ وہ کھیتوں سے واپس آ کر دیر تک خاموش بیٹھی رہتی۔ سلیم نے پوچھا تو فاطمہ نے کہا کہ بس تھکن ہے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ سلیم پریشان ہو۔ وقت کے ساتھ فاطمہ کی حالت بگڑنے لگی، کھانا کم کھانے لگی، چہرے کی رونق ختم ہونے لگی۔ سلیم اسے گاؤں کے حکیم کے پاس لے گیا۔ حکیم نے دوائیاں دی اور کہا کہ آرام کرو۔ کچھ دن فاطمہ نے دوائیاں کھائیں مگر کوئی خاص فرق نہ پڑا۔ پھر سلیم اسے قریبی قصبے کے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے ٹیسٹ لکھ دیے۔ سلیم نے اپنے تھوڑے بہت پیسے سب علاج پر لگا دیے۔ فاطمہ کبھی بہتر محسوس کرتی اور کبھی پھر کمزور ہو جاتی۔ رات کو درد کی وجہ سے سو نہیں پاتی تھی۔ بچے ماں کے پاس بیٹھے روتے تھے۔ سلیم دن میں کام کرتا اور رات کو فاطمہ کے پاس بیٹھا رہتا۔ وہ بار بار دعا کرتا کہ اللہ اس کی بیوی کو صحت دے دے۔ آہستہ آہستہ گھر کے سارے پیسے ختم ہو گئے۔ سلیم نے اپنی چھوٹی موٹی چیزیں بھی بیچ دیں مگر فاطمہ کی حالت سنبھل نہ سکی۔ ایک رات فاطمہ نے سلیم کا ہاتھ پکڑا۔ اس کی آواز بہت کمزور تھی۔ اس نے کہا، بچوں کا خیال رکھنا، انہیں کبھی اکیلا مت چھوڑنا۔ فیضان اور ماریا ماں کے پاس بیٹھے سب کچھ سن رہے تھے۔ وہ نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے۔ کچھ ہی دنوں بعد فاطمہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ گھر میں سناٹا چھا گیا۔ فاطمہ کے بعد گھر جیسے اجڑ گیا۔ بچے ماں کو ڈھونڈتے رہتے۔ ماریا بار بار پوچھتی کہ امی کب آئیں گی۔ سلیم بچوں کو سینے سے لگا کر رو دیتا۔ وہ خود بھی ٹوٹ چکا تھا مگر بچوں کے لیے خود کو مضبوط دکھاتا تھا۔ فاطمہ کی وفات کو کئی مہینے گزر چکے تھے مگر سلیم کے لیے وقت جیسے وہیں رک گیا تھا۔ گھر وہیں تھا، دیواریں وہیں تھیں مگر ہر چیز بے جان لگتی تھی۔ سلیم اکثر شام کو کام سے لوٹتا تو دروازے پر کوئی آواز نہ ہوتی، نہ بچوں کی ہنسی، نہ فاطمہ کی آہٹ۔ فیضان اور ماریا صحن کے کونے میں بیٹھے ہوتے، کبھی مٹی سے کھیلتے، کبھی ایک دوسرے کو خاموشی سے دیکھتے، جیسے دونوں اپنی عمر سے کہیں زیادہ بڑے ہو گئے ہوں۔ ماریا اکثر دروازے کی طرف دیکھ کر رک جاتی اور آہستہ سے پوچھتی، ابو، امی آج بھی نہیں آئیں گی؟ یہ سوال سلیم کے سینے میں تیر بن کر لگتا۔ وہ بچوں کو پاس بٹھا لیتا مگر لفظ اس کے گلے میں ہی اٹک جاتے۔ سلیم نے بہت کوشش کی کہ بچوں کو ماں کی کمی محسوس نہ ہو۔ وہ خود کھانا پکاتا، کپڑے دھوتا، رات کو بچوں کو سلاتا مگر ایک مرد جتنا بھی مضبوط ہو ماں نہیں بن سکتا۔ اسے سب سے زیادہ خوف راتوں سے آتا جب بچے ڈر کر جاگ جاتے اور امی کو آواز دیتے اور سلیم کے پاس سوائے خاموشی کے کچھ نہ ہوتا۔ ایک دن سلیم کام سے لوٹا تو دیکھا فیضان نے ماریا کو خود سے چپ کرانے کی کوشش کی۔ وہ خود بچہ تھا مگر بہن کے آنسو دیکھ کر وہ وقت سے پہلے بڑا بننے لگا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر سلیم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ سمجھ گیا کہ اس کی مجبوری اب بچوں پر بوجھ بن رہی ہے۔ چند دنوں بعد گاؤں کے ایک بزرگ جنہیں سب حاجی صاحب کہتے تھے سلیم سے ملنے آئے۔ وہ خاموشی سے چارپائی پر بیٹھے، گھر کی حالت دیکھی، بچوں کی آنکھوں میں اداسی دیکھی اور سلیم کے چہرے پر بکھری ہوئی تھکن۔ کچھ دیر بعد حاجی صاحب بولے، سلیم بیٹا، غم قسمت کا لکھا ہوتا ہے
मगर बच्चों का मुस्तकबिल हमारे हाथ में होता है। सलीम ने नजरें झुका लीं, उसकी आंखों में आंसू भर आए। हाजी साहब ने आहिस्ता कहा, तू अकेला सब कुछ संभालने की कोशिश कर रहा है, ये तेरी कमजोरी नहीं, तेरी मजबूरी है। सलीम ने भारी आवाज में कहा, मैं फातिमा की जगह किसी को नहीं दे सकता, मेरे बच्चों की मां वही थी। हाजी साहब ने गहरी सांस ली और बोले, किसी को फातिमा की जगह नहीं देनी, बस बच्चों को एक साया देना है। यह बात सलीम के दिल में उतर गई, मगर उसने फौरन हां नहीं की। वह कई रातें जागता रहा, कभी बच्चों को देखता, कभी फातिमा की यादों में खो जाता। वह खुद से कहता, अगर मैंने शादी की और वह औरत बच्चों के साथ अच्छी ना हुई तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मगर फिर अगले ही लम्हे फैजान और मारिया की खाली आंखें उसे फैसला करने पर मजबूर कर देती। आखिरकार बहुत सोचने, बहुत टूटने और बहुत रोने के बाद सलीम ने दिल पर पत्थर रखकर यह फैसला कर लिया कि वह बच्चों के लिए दूसरी शादी करेगा। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह फैसला उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी आजमाइश बनने वाला है और फैजान और मारिया के लिए एक ऐसा वक्त आने वाला है जिसका दर्द अभी उन्हें मालूम भी नहीं था। चंद दिनों बाद गांव में सलीम की दूसरी शादी की बात फैल गई। यह शादी खुशी की नहीं, मजबूरी की थी। न ढोल था, न बाजा, न कोई बड़ी तैयारी। रुखसाना एक करीबी गांव से आई थी। वह दरमियानी उम्र की तेज नजर और मजबूत लहजे वाली औरत थी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट कम और हिसाब ज्यादा था। शादी सादा निकाह में हो गई। चंद गवाह, चंद दुआएं और एक नया रिश्ता कायम हो गया। रुखसाना जब पहली बार इस घर में दाखिल हुई तो उसकी नजर सीधी बच्चों पर जाकर ठहर गई। फैजान एक कोने में खड़ा था और मारिया उसके पीछे छुपी हुई थी। रुखसाना ने न प्यार से बुलाया, न सर पर हाथ रखा, बस एक नजर डाली और घर के अंदर चली गई। शुरू के चंद दिन खामोशी में गुजर गए। रुखसाना ने काम संभाल लिया, खाना वक्त पर बनने लगा, घर साफ रहने लगा, मगर बच्चों के लिए वह खामोशी अजीब थी। रुखसाना के लहजे में आहिस्ता आहिस्ता सख्ती आने लगी। काम के बहाने, बातों के ताने और बच्चों को बार बार खामोश कराना। कभी कहती ज्यादा शोर न किया करो, कभी बोलती काम के नहीं हो। यह सब आहिस्ता आहिस्ता शुरू हुआ। किसी को फौरन अंदाजा न हुआ कि यह रवैया एक बड़े जुल्म की बुनियाद बन रहा है। यह वह वक्त था जब इस घर में मां की जगह एक अजनबी ने ले ली थी और फैजान और मारिया अब सिर्फ यतीम नहीं बल्कि बेसहारा भी होने वाले थे। शाम को जब सलीम काम से घर लौटता तो रुखसाना का लहजा बदल जाता। वह बच्चों से नरमी से बात करती, रोटी खुद प्लेट में डालकर देती। सलीम बच्चों को पास बिठाकर पूछता, ये तुम्हारी मां है ना, तुम खुश तो हो? फैजान बस सर हिला देता। मारिया खामोश रहती, नजरें जमीन पर जमाए रखती। सलीम इस खामोशी को बच्चों का सदमा समझकर नजरअंदाज कर देता। वह दिल में सोचता कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, मगर बच्चों के चेहरे हर दिन पहले से ज्यादा उदास होते जा रहे थे। यह वह खामोशी थी जो चीख रही थी, मगर सुनने वाला कोई नहीं था। सलीम इन दिनों अंदर से बहुत बेचैन रहने लगा था। घर के हालात ठीक नहीं थे, खर्चे बढ़ रहे थे और मजदूरी कम पड़ रही थी। एक शाम वह खामोशी से बैठा हिसाब लगाता रहा। फिर उसने फैसला कर लिया। शहर में एक ठेकेदार था जो 2 दिन की मजदूरी के अच्छे पैसे देता था। सलीम ने दिल में सोचा, 2 दिन शहर चला जाता हूं, कुछ पैसे बन जाएंगे, बच्चों के लिए कपड़े और राशन ले आऊंगा। अगली सुबह वह जल्दी उठा। फैजान और मारिया अभी सो रहे थे। सलीम ने दोनों बच्चों को गौर से देखा, कुछ लम्हों के लिए रुका, फिर आहिस्ता से फैजान को जगाया और कहा, बेटा अब्बा 2 दिन के लिए शहर जा रहे हैं। फैजान फौरन उठ बैठा और बोला, अब्बा आप जल्दी आ जाएंगे ना? सलीम ने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, हाँ बेटा, 2 दिन में वापस, मेरे बच्चों के लिए बहुत कुछ लेकर आऊंगा। मारिया भी जाग गई। वह अब्बा के गले लग गई और बोली, अब्बा हमें अकेला मत छोड़ना। सलीम का दिल भर आया। उसने दोनों को सीने से लगा लिया और कहा, मैं कहां जा रहा हूं, बस मजदूरी के लिए, तुम अपनी मां की बात मानना। फिर सलीम ने रुखसाना की तरफ देखा और कहा, मैं 2 दिन के लिए जा रहा हूं, बच्चों का ख्याल रखना। रुखसाना ने सर हिलाकर कहा, आप बेफिक्र हो जाए, ये मेरे ही बच्चे हैं। सलीम ने एक लम्हे के लिए उसके चेहरे को देखा, फिर नजरें हटा ली। वह घर से निकल गया, ये सोचकर कि वह 2 दिन बाद सब कुछ बेहतर करके लौटेगा। सलीम को क्या खबर थी कि उसके पीछे वह सब होने वाला है जो उसकी जिंदगी को बदल देगा। सलीम के घर से निकलते ही घर का माहौल बदल गया। वह घर जो कुछ देर पहले अब्बा की मौजूदगी से भरा हुआ था, अचानक खामोश हो गया। फैजान और मारिया सहन में बैठे थे।
बार बार दरवाजे की तरफ देख रहे थे, शायद अब्बा वापस आ जाई, लेकिन दरवाजा बंद रहा। रुखसाना ने दोनों बच्चों को गौर से देखा। उसकी आंखों में नरमी नहीं थी, सिर्फ हिसाब था। कुछ देर बाद उसने खुद को संभाला और आवाज नरम कर ली और कहा, फैजान, मारिया तैयार हो जाओ। फैजान ने हैरानी से पूछा, कहाँ जाना है? रुखसाना ने फौरन जवाब दिया, तुम्हारी नानी के घर। वह बहुत दिनों से तुम्हें याद कर रही हैं। मारिया खुश हो गई और बोली, नानी के घर? अम्मी वाकई? रुखसाना ने झूठ को सच बनाकर कहा, हाँ बेटी, आज ही जाना है। बच्चों ने जल्दी जल्दी पुराने कपड़े पहने। किसी को अंदाजा नहीं था कि यह सफर वापसी का नहीं है। रुखसाना उन्हें साथ लेकर गांव से बाहर की तरफ चल पड़ी। रास्ते में फैजान बार बार पूछता रहा, अम्मी नानी का घर इतना दूर क्यों है? रुखसाना हर बार यही कहती चलती रहो, बस थोड़ा सा आगे है। रास्ता बदलता गया। कच्चे रास्ते खत्म हुए, दरख्त घने होने लगे। मारिया ने डरते हुए रुखसाना का हाथ पकड़ लिया और कहा, अम्मी ये तो जंगल लग रहा है। रुखसाना ने फौरन कहा, खामोश रहो, नानी का घर इसी तरफ है। बच्चे एक दूसरे को देखने लगे। उनके दिल में खौफ उतरने लगा। कुछ देर बाद वह जंगल के अंदर आ चुके थे। चारों तरफ दरख्त, सन्नाटा और खामोशी। रुखसाना एक जगह रुककर बोली, यहीं बैठो, तुम बहुत थक गए हो। फैजान ने पूछा, अम्मी नानी का घर कहाँ है? रुखसाना ने नजरें चुरा ली और कहा, मैं पानी लेकर आती हूं, तुम यहीं बैठो। मारिया ने फौरन कहा, अम्मी हमें साथ ले चलो। रुखसाना ने सख्ती से कहा, नहीं, यहीं रहो। वह तेजी से मुड़ी और जंगल के अंदर गायब हो गई। फैजान और मारिया वहीं बैठे रहे। वक्त गुजरता रहा। सूरज ढलने लगा मगर रुखसाना वापस नहीं आई। मारिया रोने लगी और बोली, भाई अम्मी क्यों नहीं आ रही? फैजान ने उसे सीने से लगा लिया। खुद का दिल भी कांप रहा था। अम्मी आ जाएंगी, ये कहते हुए उसकी आवाज टूट गई। अंधेरा फैलने लगा। जंगल की आवाजें तेज हो गईं। अब बच्चों को समझ आ चुका था कि उन्हें यहां छोड़ दिया गया है। वह दोनों अकेले थे, बेसहारा जंगल के बीच। और शहर में सलीम यह सोच रहा था कि 2 दिन बाद वह अपने बच्चों के लिए खुशियां लेकर लौटेगा। रुखसाना जंगल से निकलते ही एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखती। उसके कदम तेज थे, दिल में कोई पछतावा नहीं था। वह सीधा गांव की तरफ लौट गई। घर पहुंचकर उसने दरवाजा बंद किया और ऐसे लेट गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जंगल में फैजान और मारिया उसी जगह बैठे रहे जहां रुखसाना ने छोड़ा था। सूरज पूरी तरह गुरूब हो चुका था। चारों तरफ खामोशी नहीं, खौफ था। दरख्तों की सरसराहट, परिंदों की आवाजें, दूर कहीं जानवरों की चीख। मारिया कांप रही थी। वह फैजान से लिपट गई और बोली, भाई अम्मी नहीं आएंगी ना? फैजान ने खाली रास्ते की तरफ देखा। कोई कदमों की आवाज नहीं थी। वह आहिस्ता बोला, अम्मी हमें छोड़ गई हैं। ये कहते ही उसके आंसू बहने लगे। कुछ देर बाद फैजान ने खुद को संभाला और कहा, यहां बैठे रहने से अम्मी नहीं मिलेगी। वह खड़ा हुआ मारिया का हाथ थामा और बोला, चलो थोड़ा आगे देखते हैं। दोनों डर के साथ हिम्मत करके आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़े। वह हर दरख्त के पीछे देखते, हर आवाज पर रुक जाते, लेकिन कहीं भी मां न थी। चलते चलते उनकी नजर एक पुरानी झोंपड़ी पर पड़ी। झोंपड़ी मिट्टी और लकड़ी की बनी हुई थी। छत आधी टूटी हुई थी। दरवाजा एक तरफ लटक रहा था। फैजान ने इधर उधर देखा, कहीं कोई इंसान नजर नहीं आया। आओ मारिया, यहीं रुक जाते हैं। वह दोनों झोंपड़ी के अंदर गए। अंदर कुछ भी नहीं था, सिर्फ मिट्टी की जमीन और अंधेरा। वो सहन में दीवार के साथ बैठ गए। मारिया ने सर फैजान के कंधे पर रख दिया और बोली, भाई मुझे डर लग रहा है। फैजान ने उसे मजबूती से पकड़ लिया और कहा, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। रात गहरी होती गई। थकन, खौफ और भूख आहिस्ता आहिस्ता आंखों पर गालिब हो गए। दोनों उसी झोंपड़ी में सो गए। सुबह सूरज की रोशनी झोंपड़ी के अंदर आई। फैजान की आंख खुली। उसने फौरन इधर उधर देखा। मारिया जाग गई। वह बाहर निकले। जंगल वैसा ही था, खामोश, सुनसान। न कोई आवाज, न कोई इंसान। मारिया ने धीमी आवाज में कहा, भाई अब क्या करेंगे? फैजान ने गहरा सांस लिया। वह जानता था अब उन्हें खुद ही जीना सीखना होगा। 2 दिन की सख्त मजदूरी के बाद सलीम शहर से गांव की तरफ लौट रहा था। उसके कपड़ों पर मिट्टी जमी थी, हाथों में छाले थे, मगर दिल में खुशी थी। वह रास्ते में बाजार रुका। उसने फैजान के लिए एक सादा सा कुर्ता लिया और मारिया के लिए रंगीन दुपट्टा और चप्पल। उसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। उसने दिल में सोचा, बच्चों को खुश देखकर मेरी सारी थकन उतर जाएगी। सूरज ढल रहा था जब सलीम अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा। उसने आहिस्ता से आवाज दी, फैजान, मारिया,
कोई जवाब नहीं आया। सहन खाली था, न बच्चों की हंसी न कदमों की आहट। उसने दोबारा आवाज दी, मगर फिर भी खामोशी रही। सलीम का दिल जोर से धड़कने लगा। वह कमरे में गया और रुखसाना से पूछा, बच्चे कहाँ हैं? रुखसाना ने आम सा लहजा बनाया और कहा, वह नानी के घर जाने की जिद कर रहे थे। सलीम चौंक गया। नानी के घर अकेले? रुखसाना ने फौरन जवाब दिया, मैंने बहुत रोका था, मगर बच्चे माने नहीं, कहने लगे, हम रास्ता जानते हैं। सलीम ने बच्चों के लिए खरीदा हुआ सामान देखा और खामोश हो गया। दिल में बेचैनी थी, मगर उसने कुछ न कहा। वह बस इतना बोला, मैं अभी देखकर आता हूं, और फौरन नानी के घर की तरफ चल पड़ा। वहां पहुंचकर सलीम ने दरवाजे पर दस्तक दी। बूढ़ी नानी बाहर आई और उसे देखकर बोली, अरे सलीम, आओ बेटा। खैरियत? सलीम ने घबराकर पूछा। फैजान और मारिया आए हैं। नानी का चेहरा फौरन बदल गया। वो बोली, नहीं बेटा, आज तो कोई बच्चा नहीं आया। सलीम के हाथ कांपने लगे। उसने फिर पूछा, आपको यकीन है? नानी ने कहा, अगर आते तो मैं पहचान न लेती। क्या? सलीम का दिल बैठने लगा। वह नानी के घर से निकला और सीधा गांव की गलियों में चल पड़ा। वह हर दरवाजे पर जाकर पूछता रहा, क्या मेरे बच्चे इधर से गुजरे थे? किसी ने कहा, नहीं देखा। किसी ने कहा, आज तो बच्चे नजर ही नहीं आए। आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा फैलने लगा और सलीम की बेचैनी खौफ में बदलती चली गई। आखिरकार वह हांफता हुआ खाली हाथ घर वापस लौटा। कई दिन गुजर चुके थे। जंगल की उस झोंपड़ी में फैजान और मारिया की जिंदगी अब रुकने वाली नहीं रही थी। उन्हें यह बात समझ आ चुकी थी कि वापस जाने का रास्ता उन्हें मालूम नहीं। न गांव की सिमत, न घर का कोई निशान। उसी झोंपड़ी को उन्होंने अपना ठिकाना बना लिया था। हर सुबह फैजान सबसे पहले जागता, मारिया को झोंपड़ी में बिठाकर कहता, यहीं रहना, कहीं जाना नहीं। फिर वह नदी की तरफ जाता, पानी में हाथ डालकर छोटी मछलियां पकड़ने की कोशिश करता। कभी खाली हाथ लौटता, कभी 2-3 मछलियां मिल जाती। वह मछलियां झोंपड़ी में लाकर पत्थरों पर सेंकता। मारिया अपने नन्हे हाथों से आग में लकड़ियां डालती। दोनों मिलकर खाते, कभी जंगल से गिरे फल, कभी सिर्फ नदी का पानी। भूख ने उन्हें वक्त से पहले बड़ा बना दिया था। आहिस्ता आहिस्ता डर कम होने लगा। जंगल की आवाजें अब अजनबी नहीं लगती थीं। एक दिन फैजान हस्बे मामूल नदी की तरफ जा रहा था। रास्ते में अचानक उसके कानों में कमजोर सी आवाज पड़ी, बार बार आने वाली भूख से भरी आवाज। वह रुक गया, इधर उधर देखा। करीब ही एक दरख्त के साथ नीचे की तरफ एक घोंसला नजर आया। घोंसले के पास जमीन पर एक बड़ा बाज मुर्दा हालत में पड़ा था। उसके पर फैले हुए थे। वह मर चुका था। घोंसले में बाज के 2 बच्चे भूख से बिलख रहे थे। फैजान काफी देर खामोश खड़ा उन्हें देखता रहा। उसके दिल में तरस आ गया। वह आहिस्ता से बोला, तुम भी अकेले रह गए हो जैसे हम। फैजान ने नरमी से घोंसले के करीब जाकर बाज के बच्चों को उठाया, उन्हें अपनी कमीज में लपेटकर झोंपड़ी की तरफ ले आया। मारिया ने हैरानी से पूछा, भाई ये क्या है? फैजान ने कहा, ये हमारे साथ रहेंगे। वो दोनों बाज के बच्चों को थोड़ी थोड़ी मछली खिलाने लगे, पानी पिलाने लगे। दिन गुजरते गए, बाज के बच्चे ताकतवर होने लगे, उनके पर फैलने लगे। ये आम परिंदे नहीं थे, ये अच्छी नस्ल के कीमती बाज थे। जंगल में अब वह 4 जिंदगियां एक दूसरे के सहारे जी रही थीं, और दूसरी तरफ सलीम अभी तक अपने बच्चों को ढूंढ रहा था। जब फैजान और मारिया गुम हुए तो सलीम सिर्फ बाप नहीं टूटा, एक इंसान भी बिखर गया। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि उसके साथ हो क्या गया है। कभी उसे लगता बच्चे अभी दरवाजे से अंदर आ जाएंगे, कभी उसे यकीन हो जाता कि वह सब कुछ हार चुका है। वह बेमकसद गांव की गलियों में घूमता रहता। कभी किसी बंद दरवाजे के सामने रुककर खड़ा हो जाता, जैसे अंदर से कोई आवाज आएगी, मगर हर बार खामोशी ही मिलती। रातें सलीम पर सबसे भारी थीं। वह घर के अंदर जाने से डरता था। वह सहन व कमरा, हर चीज बच्चों की याद दिलाती थी। अक्सर वह गांव की गली में दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ जाता, सारी रात आंखें खुली रखता और आसमान को देखता रहता। गांव वाले उसे इस हाल में देखते तो दिल भर आता। कोई रोटी रख जाता, कोई पानी दे जाता। लोग आहिस्ता आवाज में कहते, अल्लाह जाने बच्चों के गम ने सलीम को क्या बना दिया है। अब सलीम अपनी दुनिया में नहीं रहता था। कभी खुद से बातें करता, कभी अचानक चौंक कर चारों तरफ देखने लगता, जैसे किसी ने नाम पुकारा हो। दूसरी तरफ रुखसाना के दिल में बिल्कुल और ही कहानी चल रही थी। जो कुछ हो रहा था वही वह चाहती थी। उसके लिए सलीम का टूटना कोई दुख नहीं था, यह सब उसके फायदे में था। वह चाहती थी कि यह घर पूरा उसका हो जाए।
सलीम की छोटी सी जमीन भी उसी के नाम हो जाए। सलीम की हालत उसके लिए मसला नहीं बल्कि एक मौका थी। सलीम अब अक्सर घर आता ही नहीं था, और अगर आ भी जाता तो उसे याद नहीं रहता कि कब आया और कब निकला। फिर एक दिन वह गांव से बाहर निकल गया। वह सीधा सड़क के किनारे जाकर बैठ गया। शाम ढल गई, रात छा गई, मगर सलीम वापस नहीं आया। अगला दिन भी गुजर गया। सलीम का कोई पता नहीं था। वह घर जहां कभी 2 बच्चों की हंसी गूंजती थी, अब कब्रिस्तान की तरह खामोश था। रुखसाना ने गांव वालों के सामने आंखों पर आंचल रखा और रोना शुरू कर दिया। वह बोली, पहले बच्चे चले गए, अब सलीम भी चला गया। मैं अकेली क्या करूंगी? लोगों ने उस पर तरस खाया, किसी ने तसल्ली दी, किसी ने दिलासा दिया, मगर ये आंसू दिल से नहीं थे। ये सिर्फ दिखावे के आंसू थे। रुखसाना के अंदर न बच्चों की कमी थी, न सलीम का गम। अब वह घर उसके कब्जे में था, और सलीम एक टूटा हुआ इंसान बनकर किसी अनजान रास्ते पर अकेला चल पड़ा था। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता गया। जंगल जो कभी फैजान और मारिया के लिए खौफ की जगह था, अब उनकी दुनिया बन चुका था। वह दोनों अब बच्चे नहीं रहे थे। फैजान 16-17 बरस का हो चुका था, और मारिया भी जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी थी। जिस्म मजबूत हो चुके थे। आंखों में वह मासूमियत नहीं रही थी जो कभी गांव की गलियों में थी। जंगल ने उन्हें जीना सिखा दिया था। एक दिन जंगल की खामोशी टूट गई। दूर से घोड़ों और कदमों की आवाजें आईं। एक रईस आदमी अपने चंद आदमियों के साथ शिकार के लिए जंगल में आया था। उसकी नजर एक पुरानी सी झोंपड़ी पर पड़ी। वह हैरान हुआ, इस वीरान जंगल में यह कौन रहता है? वह झोंपड़ी के करीब आया, दरवाजे पर खड़ा हुआ। अंदर देखा तो एक नौजवान लड़का और लड़की बैठे थे। रईस ने सख्त लहजे में पूछा, तुम कौन हो? यहां क्या कर रहे हो? फैजान सीधा खड़ा हुआ और पुरसुकून आवाज में बोला, हम यहां रहते हैं, यही हमारा घर है। उसी लम्हे रईस की नजर झोंपड़ी के एक कोने पर पड़ी। वहां 2 बाज बैठे थे, ताकतवर, खूबसूरत और आला नस्ल के। रईस चौंक गया और बोला, ये बाज किसके हैं? फैजान ने जवाब दिया, हमारे, हमने ही इन्हें पाला है। रईस की आंखों में लालच चमकने लगा। वह जानता था ये आम बाज नहीं थे, ये बहुत कीमती थे। उसने कहा, क्या तुम ये बाज बेचोगे? जो कीमत मांगोगे मैं देने को तैयार हूं। फैजान और मारिया एक दूसरे को देखने लगे। ये बाज उनके साथ बरसों से थे। भूख में, तन्हाई में यही उनका सहारा थे। कुछ लम्हे खामोशी रही। फिर रईस ने कहा, ये बाज तुम्हारी तकदीर बदल सकते हैं। आखिरकार भाई बहन ने दिल पर पत्थर रखकर हां कर दी। रईस के आदमी एक बड़ा सा बैग लाए। बैग खुला तो नोटों से भरा हुआ था। फैजान और मारिया खुश भी थे और दिल से टूटे हुए भी। बाजों को जाता देखकर आंखें नम हो गईं। रईस वहां से चला गया और जंगल में खामोशी फिर लौट आई। चंद दिनों बाद फैजान ने फैसला किया, अब हम यहां नहीं रहेंगे। वह दोनों जंगल से निकले। रास्ते अनजान थे, गांव बदल चुके थे। फैजान लोगों से पूछता रहा, ये कौन सा गांव है? एक आदमी ने नाम बताया। फैजान ने पूछा, क्या यहां सलीम नाम का कोई आदमी रहता था? लोग एक दूसरे को देखने लगे। फिर किसी ने कहा, हाँ वह था, मगर उसके बच्चे गुम हो गए थे, गम में पागल हो गया था, अब तो बरसों से नजर नहीं आया। फैजान का दिल बैठ गया। उसने पूछा, उसका घर कहाँ है? एक गली का नाम बताया गया। वह दोनों वहां पहुंचे। दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला। सामने रुखसाना थी, उसके साथ एक अजनबी मर्द। रुखसाना ने सख्ती से पूछा, तुम कौन हो? मेरे घर में क्यों आए हो? फैजान की आवाज बुलंद हो गई, मैं फैजान हूं, वही जिसे तुमने जंगल में छोड़ दिया था। यह घर हमारा था और हमारा ही रहेगा। मेरा बाप कहाँ है? रुखसाना घबरा गई। कहने लगी, वह पागल हो गया था, कहीं निकल गया होगा। उसके शौहर ने गुस्से से कहा, यह हमारा घर है, निकलो यहां से। फैजान बोला, अभी फैसला हो जाएगा, मैं पुलिस को बुलाता हूं। यह बात सुनते ही रुखसाना के साथ खड़ा वह मर्द एक लम्हे के लिए साकित रह गया। उसके चेहरे पर खौफ साफ नजर आ रहा था। वह हालात को भांप चुका था कि अब बात हाथ से निकल चुकी है। वह आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटा और नजरें चुराकर बोला, यह तुम्हारा मसला है, मैं इस झगड़े में नहीं पड़ूंगा। अगले ही लम्हे वह रुखसाना को वहीं अकेला छोड़कर गली में भाग गया। रुखसाना वहीं खड़ी रह गई। उसके कदम जैसे जमीन में गड़ गए हों, न बोलने की हिम्मत, न भागने की ताकत। फैजान ने एक लम्हा भी जाया नहीं किया। उसने मारिया का हाथ थामा और दोनों अपने बाप की तलाश में निकल पड़े। दिन गुजरते गए, रातें बदलती रहीं। वह शहर की गलियों, सड़कों और फुटपाथों पर हर उस इंसान को देखते जो टूटा हुआ लगता। हर बार दिल धड़कता,
कि शायद यही अब्बा हों। आखिर एक दिन शहर के किनारे फुटपाथ पर दीवार के साथ टेक लगाए एक कमजोर सा वजूद बैठा नजर आया। बाल बिखरे हुए, चेहरा मुरझाया हुआ, आंखें खाली। फैजान के कदम वहीं रुक गए। वह आहिस्ता आहिस्ता करीब गया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। लरजती आवाज में बोला, अब्बा। उस शख्स ने सर उठाया मगर आंखों में पहचान नहीं थी। फैजान घुटनों के बल बैठ गया और आंसुओं के साथ बोला, अब्बा, मैं फैजान हूं, आपका बेटा। मारिया भी आगे बढ़ी और रोते हुए कहा, अब्बा, मैं मारिया हूं। अचानक सलीम की आंखों में जैसे कोई चिराग जल उठा। यादों का बोझ एकदम टूट पड़ा। वह झारों कतार रोने लगा और दोनों बच्चों को जोर से सीने से लगा लिया। मेरे बच्चे, तुम जिंदा हो। वह तीनों सड़क किनारे देर तक एक दूसरे से लिपटे रहे। फैजान ने बाप के कंधे पर हाथ रखा और मजबूत लहजे में कहा, अब्बा, आप डरने की जरूरत नहीं, हम आपको घर ले जा रहे हैं। फैजान ने फौरन बाप को शहर के अच्छे अस्पताल में दाखिल करवाया। महंगा इलाज, अच्छी दवाइयां, माहिर डॉक्टर। वक्त के साथ सलीम की हालत संभलने लगी। कुछ दिनों बाद फैजान अपने बाप को लेकर वापस गांव आया। जब सलीम अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा तो रुक गया। यादें एक एक करके आंखों के सामने आ गईं। उसी घर में फैजान ने रुखसाना की तरफ देखकर कहा, अब्बा, यही वह औरत है जिसने हमें घर से निकाला था और जंगल में छोड़ दिया था। रुखसाना के हाथ कांपने लगे। शोर सुनते ही गांव वाले भी इकट्ठे हो गए। कोई दौड़ता हुआ आया, कोई दरवाजे पर खड़ा हो गया, कोई दीवार से टेक लगाकर खामोशी से सब कुछ देखने लगा। क्या हो गया है? इतना शोर क्यों है? यहां कौन है? जब लोगों की नजर सामने खड़े सलीम पर पड़ी तो सबके चेहरे बदल गए। अरे, ये तो सलीम है, ये जिंदा है। हमने तो समझा था कि वह मर गया है। सलीम सर झुकाए खामोश खड़ा था, चेहरे पर कमजोरी मगर आंखों में सालों का दर्द। फैजान ने एक कदम आगे बढ़कर भरी हुई आवाज में कहा, हाँ चाचा, यही हमारे अब्बा हैं। वह जिंदा हैं मगर टूट चुके थे। लोग हैरत से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। एक बूढ़े ने पूछा, मगर ये इतने साल कहाँ थे? फैजान ने नजरें झुका ली और आहिस्ता आहिस्ता बोला, ये सड़कों पर थे, फुटपाथों पर, अपनी औलाद के गम में पागल होकर। यह सुनते ही लोगों के दिल दहल गए। तब मारिया ने रोते हुए कहा, और इस सब की वजह यह औरत है। उसने कांपते हाथ से रुखसाना की तरफ इशारा किया। यही वह है जिसने हमें घर से निकाला और जंगल में छोड़ दिया था। यह सुनकर गांव में जैसे भूचाल आ गया। क्या बच्चों को जंगल में छोड़ दिया? यह तो जुल्म की इंतहा है। लोगों की आवाजें गुस्से में बदलने लगी। रुखसाना घबरा गई, उसके पांव लड़खड़ाने लगे। वह हाथ जोड़कर बोली, मुझे मत निकालो, मैं कहां जाऊंगी, मेरा कोई नहीं है। एक औरत आगे बढ़ी और सख्त लहजे में बोली, जब तुमने बच्चों को जंगल में छोड़ा था तब तुम्हें तरस आया था। एक और आदमी बोला, ऐसी औरत इस गांव में रहने के काबिल नहीं। गांव वालों ने मुत्तफिक होकर कहा, रुखसाना अभी और इसी वक्त यह गांव छोड़ दो। रुखसाना झारों कतार रोने लगी, जमीन पर बैठ गई, मगर किसी का दिल न पसीजा। आखिरकार वह खाली हाथ गांव से निकल गई। वक्त गुजरता गया, वह सड़कों पर भटकती रही, दर दर भीख मांगती रही। जिल्लत उसका मुकद्दर बन गई। इधर फैजान ने अपने बाप को शहर के महंगे अस्पताल में दाखिल करवाया। अच्छे डॉक्टर, अच्छी दवाइयां और सच्ची खिदमत। कुछ अरसे बाद सलीम संभलने लगा। एक दिन मिट्टी के पुराने घर में बैठे फैजान ने कहा, अब्बा, मैं आपके लिए नया घर बनवाना चाहता हूं। सलीम ने हैरत से पूछा, बेटा, इतने पैसे कहां से आए? फैजान ने मुस्कुराकर पैसों से भरा बैग रखा और बस इतना कहा, अब्बा, यह अल्लाह ने दिया है। कुछ ही महीनों में इसी गांव में एक खूबसूरत पक्का घर बन गया। लोग देखकर कहने लगे, देखो, जब मां ने बच्चों को निकाला तो अल्लाह ने उनकी तकदीर बदल दी। सलीम, फैजान और मारिया इसी घर में सुकून की जिंदगी गुजारने लगे, क्योंकि अल्लाह के यहां देर है, अंधेर नहीं। अगर स्टोरी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। The struggle was long, but worth it. We are finally home.